So see here, we are here in this lecture. We will talk about chapter 8 quadrilaterals, class 9th only, because it is very important chapter and many students feel this difficult. But no, it is not that much difficult that you feel. All right. So this is one question actually. It is more important, all right, that can come in your examination also. So we are today talking about some important questions of chapter number 8. So see, let's read the question. As you can see in the screen only, see the question is in the adjoining figure. ABCD is a parallelogram, E is the midpoint of AB and CE bisects angle BCD. So prove that AE is equal to AD and DE bisects angle ADC and एंगल डी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई साहब देख लो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे एक फिगर बन रखा है। चलो एक बार स्क्रीन पे आते हैं अपने, जहाँ पे अपन काम करेंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले ए ई इज इक्वल टू ए डी आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको भी अल्फा इसको भी अल्फा मान लेंगे। तो इसका सामने वाला ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। एंगल बी सी डी विल बी 2 अल्फा, बिकॉज ये दोनों हम प्लस कर देते हैं। अब इनके सामने वाला एंगल हमें पता है कि जो बी सी डी है किसके बराबर है, वो एंगल बी ए डी के बराबर है। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, सो एंगल बी ए डी विल बी also 2 alpha. Okay, now we will talk about like this and this. So this is 2 alpha. So we are doing what we are doing, we are doing by co-interior angles, angle A plus angle B will be 180 degree, as you know, and angle A is 2 alpha plus angle B is 180. So let's find out angle B. So what is angle B is equal to 180 minus 2 alpha. All right. So let it be the first statement of, all right, this you understood. Now next proceed to the next page. See, now we will first see angle C. Now here this is 180 minus 2 alpha, 180 minus 2 alpha. So we will find that, see, this we will find this one angle, all right, and after finding this we will see that what we have to prove equal and what is already equal. So let's go, we will start our, okay. So now in coming in triangle BEC, by angle some property only we are doing this. So see guys, angle BEC plus angle B plus angle BCE, all right. So see, first angle BEC plus angle B plus angle BCE will be equal to 180 degree. Angle B will be 180 minus 2 alpha and it is alpha. So what will be angle BEC here? What will be angle BEC? Alpha. All right. So this is the main our result too. So see, now we have proved that this is also alpha. So see, and sides opposite to equal angles is also equal. So you have understood. So I am rubbing for some time actually, sorry. This I am not rubbing.
So this is so we have proved that angle BEC is equal to angle BCE, because BC is alpha and BEC also we have proved that it is alpha. Now sides opposite to equal angles is sides opposite to equal angles are equal. All right. So we will see BEC sides BC, that will be equal to BCE this angle opposite is BE. See, we know that BE is equal to AE and BC is equal to AD, because opposite sides are equal of parallelogram. So from second, third we can say AD will be equal to AE. You understood that? See, we have proved that this BC will be equal to what? This BE is equal to AE, so we can replace it AE, and we have this, then this BC is equal to AD because the opposite sides of parallelogram are equal. तो भाई साहब ये प्रूव कर दिया. इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि AD, ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू BC एंड AE इज इक्वल टू BE. ये मैंने लिख रखा है. ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जामिनर को पता लग सके ताकि तुमने कैसा कैसा प्रूव किया है. तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्चुअली. अब भाई साहब चलो नेक्स्ट पार्ट पे प्रोसीड करते हैं अपन. और भाई साहब नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा रिजल्ट आ गया. ये नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं. देखो नेक्स्ट पार्ट प्रूव क्या करना है आपको. मैं सबसे पहले मैं थर्ड पार्ट को करना चाहूँगा क्योंकि गाइस, क्योंकि जो आपका ये थर्ड पार्ट है ना, ये हमारे सेकंड पार्ट में ही आएगा. ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट को चलो देखते हैं कब पहले आएगा. तो लेट्स गो सेकंड पार्ट पहले प्रूव करते हैं. देखो इसने क्या कहा आपको भाई साहब बताना है. मैं पहले फिगर पे ही चला जाता हूँ क्योंकि फिगर मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको भाई साहब प्रूव करना है कि जो भाई साहब ये जो डी है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट, ये जो डी ई है, कहाँ पे गई, सॉरी, ये जो डी ई है ना, ये ए डी सी को बाइसेक्ट करती है. ए डी सी को, मतलब ये जो एंगल है ना, ये इसके बराबर प्रूव करना है. तो भाई साहब देख लो किस प्रकार प्रूव करोगे. सबसे पहले तो आपको प्रूव कर दिया कि जो ए ही है वो ए डी के बराबर है. तो भाई साहब इसके अपोजिट वाला एंगल तो देख लो. मैं काम कर रहा हूँ भाई साहब, मैं इसको ही वो कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा इसमें जो पैरेललोग्राम है. इतना तो बहुत ही है. ठीक है, अब जो ये डी है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों एंगल्स को. आपको प्रूव करना है ये दोनों एंगल इक्वल हैं. तो आपको पता है कि जो ए है वो इक्वल टू ए डी प्रूव हो गया. तो इनका अपोजिट एंगल्स देखो. ए का अपोजिट एंगल, अरे भाई साहब ये तो बता ही दो. ए भाई साहब ए का अपोजिट एंगल तो बताओ. ए भाई साहब ये ए का अपोजिट एंगल है ये वाला. और ये ए डी का, तो लेट इट मीन थीटा. इसको भी थीटा, तो ये दोनों थीटा थीटा हो गए. तो थीटा इक्वल टू
थीटा बिकॉज ए ई विल बी इक्वल टू ए डी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तुम देख लेना अपने आप, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है ना इतनी, तो मैं इसीलिए इसको कर रहा था। अब देखो भाई साहब, अब देखो ये एक आपको एंगल 90 प्रूव करना है, ये आपको पता ही है पहले से, अल्फा आ गया आपके पास, ये थीटा आ गया। तो भाई साहब इन तीनों का सम ले लो, एक काम करो, इस तीनों का ही सम ले लो। देखो क्या करोगे, एक सॉरी गाइस देखो गाइस ऐसे लिख लेना। सबसे पहले तो मैं इस ट्रायंगल में जाता हूं, ए डी ई में गया, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये थीटा है दोनों, ठीक है। और आपको ये प्रूव करना था तो काम करते हैं भाई साहब, फिर तो इससे पहले ये इन तीनों का सम लेने से पहले ए डी में देख लेते, क्योंकि हाँ सही कह रहे हो आप, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेज कर लेता हूँ, ठीक है भाई साहब, थोड़ी सी नहीं ठीक। देखो भाई साहब, सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई लिखते हैं, इसमें ए एस पी से सबसे पहले ए एस पी, तो मैं इनको नाम दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है ना, इसलिए मैं इनको नाम दे देता हूँ। देखो इस एंगल का नाम 1 लिखते हैं, इस एंगल का नाम 2 रखते हैं, और इस एंगल का नाम 3 रखते हैं। भाई साहब मैं एडी की बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है? ये देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये इतना सा, रुक जाओ दिखाओ मेरे को। ये थीटा है, तो ये और ये, ठीक है भाई साहब। थोड़ा सा इसको साफ होने दो, क्योंकि भाई साहब फिर समझ में नहीं आता ना, तो मैथमेटिक्स से समझ नहीं आता है। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये जो एंगल है ना इसको 3 मान लो, ठीक है मान लिया। अब देखो तुम्हें ये पता है, इसको थीटा मान लो, इसको भी थीटा मान लो, क्योंकि इस दोनों सेम है, और ये कितने है 2 अल्फा है। तो लेट्स गो, एंगल जो हमने 1 माना था, यहाँ पे जो एंगल 1 है ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो एंगल 1 और एंगल 3 का जोड़ कितना होगा 2 थीटा, और एंगल 2 का जोड़ कितना है भाई साहब 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन लेके थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 90। ये एक हमें मिल गया भाई साहब, मिल गया क्या, ये 90 प्रूव हो गया इसको सेकंड लिखते हुए। अब गाइस मेरे को इसमें इरेज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मेरे को पता है अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। अब देखो, अब मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को अल्फा प्लस थीटा ये प्लस करने से मिलेगा और मैं प्रूव कर सकता हूँ फिर DEC 90 को। तो मैं कहता हूँ, देखो मैं क्या कहता हूँ भी, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो लाइन ए बी है एट पॉइंट ई, तो हम पूरे में ले रहे हैं जो एंगल DEA है, और क्या था, हाँ एक एंगल था DEC और एक एंगल था BEC। तो भाई साहब ये 180 है, ठीक है। अब भाई साहब देखो, जो एंगल DEA था वो था एंगल DEC, एंगल EDC, तो ये तो है,
अब एक था बी सी अल्फा था, ये थीटा था, बी सी अल्फा थीटा प्लस अल्फा प्लस। अब भाई साहब मैंने इसका क्या प्रूव कर रखा था, कह दो भाई साहब, फ्रॉम सेकंड 90 प्लस एंगल डी ई सी। सो भाई साहब एंगल डी ई सी कितना होगा, 90 तो होगा। लो भाई साहब प्रूव हो गया ये। मैं इसलिए कह रहा था कि सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में ये आएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, देखो हम अपलोड प्रूव करते हैं दूसरा पार्ट, जो एंगल डी ई सी हो गया, प्रूव हो गया। अब एंगल डी ई सी में आओ। बाई एस पी से कर देना, ठीक है। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ए एस पी से करा है, मतलब ए एस पी भाई साहब मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब भाई देखो डी ई सी का वैल्यू क्या निकाला था, 90। ये डी सी ई है, इसका वैल्यू क्या था, डी सी ई का वैल्यू क्या था, डी सी का वैल्यू अल्फा था, तो कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। मतलब इससे ये प्रूव हो गया कि जो सी डी ई है ना, कितना आ गया 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ये हमें आ गया। अब गाइज ये तो दोनों डिफरेंट है ना भाई साहब, एक बार ज़रा देखो इधर से, कहो नेक्स्ट पेज पे आओ पहले और कह दो इसमें फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट हमें अल्फा प्लस थीटा 90 का था, तो इसमें तो खाली थीटा है, 90 माइनस अल्फा, ये तो इक्वल है नहीं भाई साहब। कैसे इक्वल नहीं है, थीटा को इस साइड रखो, 90 माइनस अल्फा ले जाओ, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, कह दो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट जो डी ई है ना भाई साहब, थीटा किसके बराबर था, 90 माइनस अल्फा के। कर दिया ना हमने, हमें तो इक्वेशन ये मिली थी अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। अब अल्फा को उधर ले जाओ, थीटा ही तुम्हें चाहिए था ना यहाँ पे, तो ये भी 90 माइनस अल्फा और ये भी 90 माइनस अल्फा, तो ऑलरेडी प्रूव कर रखा था। तो भाई साहब हम कह सकते हैं कि जो डी है ना, उसने ए डी सी को बाइसेक्शन किया, उसको क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। सॉरी गाइस, देखिए अब हम एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढा था, जो कि सही क्वेश्चन था, एक्चुअली सही क्वेश्चन था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, वो सम बर्ड थ्योरम्स का है ना। एक मिनट गाइस, सॉरी। देखो
भाई साहब देखो, अभी मैं आपको एक चीज़ और करवा देता हूँ जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे ना गाइज, तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ जाता है, ये वाला कॉम्पिटिटिव थ्योरम। मैं ज़्यादा ही बढ़ दिया। तो लेट्स गो, मिड पॉइंट थ्योरम करते हैं भाई। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट, प्रूफ, एक्चुअली प्रूफ सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के। अगर आप सीबीएसई के सिलेबस से अलग जाएंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे सर सिलेबस में नहीं है, तो फिर वो बात नहीं बन पाती है, ठीक है। तो मैं करवा रहा हूँ प्रूफ, उसमें तो कोई वो नहीं है, ज़रूर करवाऊँगा। और हाँ, अगली बार आपको मैं क्या करवाऊँगा, अगली बार इसको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और कुछ सवाल करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। और ठीक है, और कुछ सवाल ढूंढ के लाऊंगा। आपका कोई डाउट है तो यार ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब देखो ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम भी अच्छा है, अच्छा बहुत एक्चुअली होता है ओके। तो चलो मिड पॉइंट थ्योरम करते हैं। सबसे पहले देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं। जैसे कोई लाइन सेगमेंट है joining लाइन सेगमेंट नहीं, इन ए ट्रायंगल। देखिए मैं सबसे पहले ऐसे ले लेता हूँ इन ट्रायंगल। मैं आपको प्रूफ नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बस मेथड समझाऊंगा किस प्रकार तुम प्रूफ करोगे, ठीक है, किस प्रकार तुम प्रूफ करोगे, ठीक है भाई साहब। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी वाला, ऑलराइट, ए बी सी। अब गाइस मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि तुम क्या करो, तुम कोई भी दो साइड्स ले लो और उनकी मिड पॉइंट ढूंढो। पहले इसका ये मिड पॉइंट ढूंढा मैंने और इसका ये मिड पॉइंट ढूंढा, इसको ज्वाइन कर लिया, ये है लाइन सेगमेंट। उसमें इसको कह लो डी कह लो, इसको ई कह लो, डी ई इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब वो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये पैरेलल होगी किससे, थर्ड साइड से, और ये थर्ड साइड के आधे के बराबर भी होगी। देखो क्या रिजल्ट है इसका। अरे यार मैं इसी में नहीं बना लेता, इसी में अच्छे से बनेगा फिर तो। सही कह रहे हो यार, शेप्स में इसमें था, ये देखो ये ट्रायंगल भी है इसमें। ठीक है, इसमें तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर करके जैसे जाओ तो नहीं, पर इसमें बन गया है तो क्या करें। अब मैं इसका एक मिड पॉइंट लूँगा। अरे यार अच्छा मैंने वो कर रखा है क्या, नहीं भाई साहब यही चाहिए हमें। ये मिड पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन करा, ये ए बी सी डी ई है, डी ई लाइन सेगमेंट है। अब देखो प्रूफ क्या कहता है इसका, इसमें प्रूव क्या करना होता है आपको, इसमें आपको प्रूव करना होता है। जब इसका प्रूफ करते हैं ना, तो प्रूव इसीलिए ये करना पड़ता है कि जो डी ई है ना, ये भाई साहब पैरेलल है थर्ड साइड के बी सी के, ये बी सी थर्ड साइड है इसकी। और जो ये डी है ना भाई साहब, ये इसके आधे के बराबर होती है। ये भी प्रूव करना है आपको, कोई बताया ही नहीं, आपको प्रूव करना है। देखो मैं सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो ये जो ए बी दिख रही है, ये ए बी दिख रही है ना, इसका पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन करो और इसको आगे बढ़ा दो। ये ट्रायंगल को दोनों को कंग्रुएंट प्रूव कर दो बाय ए एस से, कंग्रुएंसी रूल से मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक अल्टरनेट बन रहा है और ये मिड पॉइंट है इसका, ये भी वैसे होगा, ये मिड पॉइंट होगा और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से होगा। सही है, हाँ ए एस से होगा। फिर क्या करो, सी पी सी टी से ए डी को और इसको सी एफ मान लो, तो इसको सी एफ को बाय सी पी सी टी से प्रूव कर दो और डी ई और ई एफ को सी पी सी टी से प्रूव कर दो। इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो प्रूव क्या करना है, अब डी
ये पॉइंट है डी एफ बी सी का, सी बी का। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं। अब ये जो डी एफ सी बी है ना, ये इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। किस प्रकार प्रूव करोगे भाई साहब? प्रूव पहले तो आपको बी डी जो था वो सी एफ के वो था, पैरेलल था। ये तो आपने कंस्ट्रक्शन से कर दिया था। बट भाई साहब देखो, ये जो है ना डी, क्या है ये, डी एफ कंस्ट्रक्शन से कर दिया था। ये आपने ये प्रूव किया था बाय सीपीसीटी से ए डी सी एफ के बराबर है। ए डी किसके बराबर है? सी एफ के बराबर है। पर भाई साहब ए डी तो बी डी के भी तो बराबर है, तो मतलब बी डी किसके बराबर होगा? सी एफ के। अब मैंने क्या प्रूव कर दिया? बी डी पैरेलल टू सी एफ और बी डी इक्वल टू पी सी एफ। तो भाई साहब ये थ्योरम को याद दिलाता है कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल दी pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. So हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है ना भाई साहब यहाँ पे, तो ये पैरेललोग्राम है ही। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया यहाँ पे। अब पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद जो ये डी एफ है ये इसके इक्वल भी हो जाएगी और भाई साहब पैरेलल भी हो जाएगी। तो इसका पार्ट्स डी ई और बी सी, इनके पार्ट्स भी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। तो ये प्रूव हो गया पहला पार्ट तो, कि जो डी ई है वो बी सी के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कुछ और करता हूं। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको मैं थोड़ी सी मैं साइड में बनाऊंगा उसको, ट्राइंगल को। फिर शेप्स में अच्छे वाला ट्राइंगल कुछ है नहीं क्या? यही है मेरे पास तो गाइस। अच्छा ये तो मेरा इरेजर ही है। इसका पहले एक खींचा था, इस दोनों के पॉइंट्स ले लिए थे, इनको ज्वाइन कर कैसे कर दिया था, रेड प्रूव कर दिया था। अब भाई साहब दूसरा पार्ट प्रूव करने जा रहा हूँ कि जो कि ये डी ई है ना, ये एफ था, डी ई है वो बी सी के आधे के बराबर है। तो बेटा देखो हमने प्रूव किया था जो डी ई है वो ई एफ के बराबर है। ये प्रूव किया था भाई सीपीसीटी, जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव किया था हमने। आपको भाई साहब ये भी पता है कि जो डी एफ है ना ये पूरा वो बी सी के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। हमने प्रूव तो कर दिया था। तो डी एफ को खोलो सबसे पहले, डी ई प्लस ई एफ। अब भाई साहब ये तो दोनों तो इक्वल है, इसको फर्स्ट कह लो। फिर तो ऐसे कह देना फ्रॉम फर्स्ट इन डी, तो ऐसा कैसे लिखो? डी के उसमें ई एफ को डी से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, प्रूव्ड। ठीक है भाई साहब, मैंने ये किया कि इसको रिप्लेस कर दिया ई से, क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे। मैं इधर ई एफ भी लिख सकता था और इधर तो ए ऑलरेडी था ई एफ, तो ई एफ भी लिख के मैं कर सकता था। पर हाँ वो गलत होता है, ई एफ लिख के मैं कर देता था ना भाई साहब, तो ये तो गलत हो जाता क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम के खिलाफ है। वैसे कर तो देता हाँ बिल्कुल कर देता, मैं ऐसे कर देता। देखो पहले ई एफ हाफ मैंने प्रूव कर दिया बी सी के। अब मेरे को पता था कि जो ई एफ है वो डी ई के तो बराबर ही है, तो मैं ई एफ की जगह पे डी रिप्लेस कर देता। पर अगर आपको सीधे करने में दिक्कत है, मतलब दिक्कत क्या है, आपको क्या दिक्कत है? तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।